नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, चंद को बोलो उतरे पलक से। आज की पार्टी मेरी तरफ से, चंद को बोलो उतरे पलक से। आज की पार्टी मेरी तरफ से। दिन फटाफट टिकरी पापा, दम दम डुकुर डुकुर, dum dum dukur dukur, dum dum dukur dukur, ding फटाफट टिकरी बाबा। मची है जूल तोड़ के रूल करे वो स्टेप के गिरे लोग दाएं बाएं, नींद भी गुल जश्न का फुल, नाच जम के पूरा फ्लोर खिल जाए। बात न आए शोर मचाए, पार्टी जो न करे उसको टाटा पाए। मची है जूल तोड़ के रूल करे वो स्टेप के गिरे लोग दाएं बाएं, नींद भी गुल जश्न का फुल, नाच जम के पूरा फ्लोर खिल जाए। बात न आए शोर मचाए, पार्टी जो न करे उसको टाटा पाए। है इनविटेशन मिलके करे फन, आओ जहां
ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਰਲ ਮਿਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ ਹੱਸੀਏ ਨੱਚੀਏ ਟੱਪੀਏ ਗਾਈਏ ਵੇਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ ਨੱਚੀਏ ਟਪਾਈਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ ਨੱਚੀਏ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ ਸੱਜਦੀ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਵਧੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਓ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ ਸੱਜਦੀ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਵਧੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹਰ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਿਲਦਾਰ ਵੀ ਐਸੀ ਕਰੀ ਸਬਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਕਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿਲਦੀ ਵੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਓ ਜੀਦਾ ਰੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧਮਾਈ ਵਾਲਿਆ ਵੱਜ ਰਹੀ ਏ ਢੱਡ ਤੁੰਬੀ ਢੋਲ ਕੀ ਸਰੰਗੀ ਛੇਤੀ ਢੋਲੀਆ ਤੂੰ ਢੋਲ ਨੂੰ ਵਜਾਵੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਓ ਵੱਜ ਰਹੀ ਏ ਢੱਡ ਤੁੰਬੀ ਢੋਲ ਕੀ ਸਰੰਗੀ ਛੇਤੀ ਢੋਲੀਆ ਤੂੰ ਢੋਲ ਨੂੰ ਵਜਾਵੀਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਰੌਣਕ ਹਲਾਉਣੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਛੇਤੀ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣਾਵੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਨਾਲੇ ਨੱਚਣਾ ਅਤੇ ਨਚਾਉਣਾ ਵਿਛੜਾ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਗੱਜਣਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ ਨੱਚੀਏ ਟਪਾਈਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ ਨੱਚੀਏ ਟਪਾਈਏ
ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਰਲ ਮਿਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ ਹੱਸੀਏ ਨੱਚੀਏ ਟੱਪੀਏ ਗਾਈਏ ਵੇਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਓ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਜੇ ਢੋਲ ਤੇ ਛਣਕੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਨਕਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਨ ਵਧਾਈਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਮਿੱਤਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਮਿੱਤਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਮਿੱਤਰਾ ਤੇ ਤੋਰੀਆਂ ਜਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਵਸੀਲੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਰੰਗੀਲੇ ਓ ਜਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਮਾਰ ਲਹਾਰਾ ਰਹਿਣਾ ਜਾਨ ਪਾਈਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਮਿੱਤਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਮਿੱਤਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਮਿੱਤਰਾ ਨਣਦ ਕਹੇ ਸੁਣ ਭਾਬੀ ਇਹ ਹੀਰੇ ਛਣਕਣ ਵੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਰੇ ਅਸ਼ਕੇ ਓ ਨਣਦ ਕਹੇ ਸੁਣ ਛਣਕਣ ਵੰਗਾਂ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਸੁਣਾਈਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਮਿੱਤਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਮਿੱਤਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਮਿੱਤਰਾ ਜੀਆ ਸੋਨੀਆ ਮਾਮੇ ਮਾਸੜ ਚਾਚੇ ਫੁੱਫੜ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਨ ਵਧਾਈਆਂ ਮਾਮੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਤੇ ਨਣਦਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਦ ਨੱਚ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਮਿੱਤਰਾ ਸਭ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਮਿੱਤਰਾ ਸਭ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਮਿੱਤਰਾ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬੰਨੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਆ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੇ ਨੀ ਦਰਦ ਹਰਾਉਣੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਆਈਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਮਿੱਤਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਮਿੱਤਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਮਿੱਤਰਾ
ਦਿਲ ਨਾ ਸੌਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ, ਦਿਲ ਨਾ ਸੌਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ। ਆ ਨੱਚੀਏ ਭੰਗੜੇ ਪਾਈਏ ਇਸ ਵਕਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ। ਦੋ ਨੈਣ ਮਿਲੇ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਲ ਬੇਅਖਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਿਆਰ ਹੋਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਢੋਲ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਗਾਉਣਗੇ ਜੱਟ ਅਮਰੇ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪੰਜਾਬੀ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਪੰਜਾਬੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹਿਲਾ ਉਹ ਟੋਲੀਆਂ ਡਗਾ ਢੋਲ ਤੇ ਲਾ, ਉਹ ਟੋਲੀਆਂ ਡਗਾ ਢੋਲ ਤੇ ਲਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਪੈਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪਈ ਧਮਕ ਪਵੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜਦ ਉੱਠਦਾ ਪੈਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਭਰੂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਬੀਨ ਤੇ ਮੇਲੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ। ਅੱਜ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਭਰ ਤੇ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਏ ਚਾਅ ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ ਨਾਲਿਆ, ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ ਨਾਲਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਡਗਾ ਢੋਲ ਤੇ ਲਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਨਾਲੇ ਮੂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਚਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਘਾਟੋ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਖੇਲੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए, आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये जमीन। थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से
पाँव से आए हौले हौले जिंदगी। होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बांट ले। आजा दिल की ये ज़मीं, थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियाँ। इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशियाँ। इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशियाँ। अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे महफिल यूं ही सजती रहे। बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना।
दूर जब होने को आए, ऐसा लगे जैसे छूटा ही जाए, कुछ छूटा ही जाए। कोई दूर जब होने को आए, ऐसा लगे जैसे छूटा ही जाए, कुछ छूटा ही जाए। खट्टी मीठी यादों के आंगन में खुशियों के प्यारे प्यारे फूल खिल आए, फूल खिल आए। कोई दूर जब होने को आए, ऐसा लगे जैसे छूटा ही जाए, कुछ छूटा ही जाए। खता हुई हमसे कभी करना माफ, दिल से है लाखों दुआ, खुश रहे आप। खता हुई हमसे कभी करना माफ, दिल से है लाखों दुआ, खुश रहे आप। खुशी भी पीस भी सुकून भी दर्द भी, कैसा ये दिन है, कैसी ये शाम, कैसी ये शाम। कोई दूर जब होने को आए, ऐसा लगे जैसे छूटा ही जाए, कुछ छूटा ही जाए। हंसी खुशी जैसे दिन अब तक है बीते, जीवन आगे ऐसा आप कभी थे। हंसी खुशी जैसे दिन अब तक है बीते, जीवन आगे जैसा कि हम सबको विदित है कि हमारे महाविद्यालय के महान शख्स डॉक्टर सुरजीत सिंह राणा जी, जो हमेशा अपने हंसमुख चेहरे और हंसमुख अंदाज के लिए जाने जाते हैं, कई चेहरों पर जो खुशी ले आते हैं, आज हम सब यहाँ उनकी 35 वर्ष के कार्यकाल की सेवानिवृत्त विदाई के समारोह में उपस्थित हुए हैं। मुझे खेद है कि बिजली चली गई है, पर मुझे विश्वास है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। खुशियों भरे इन शानदार पलों के बीच आज के इस विदाई समारोह में मैं आज के सूत्रधार डॉक्टर सुरजीत सिंह राणा जी, उनकी अर्धांगिनी श्रीमती मीना राणा जी, उनके बड़े भाई श्री प्रकाश चंद्र राणा जी व छोटे भाई श्री संजय राणा जी का एक बार पुनः समस्त महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे।
थे, वो दिन भी क्या दिन 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 थे। बस सर सामने यस ओके सर स्टैंड ला करें कर्म ही आपकी पहचान है, वरना सुरजीत सिंह नाम के तो हजारों इंसान हैं। जो कमाता है वही पाता है, तभी तो आप जैसा सितारा हर जगह छाता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे महाविद्यालय से प्रोफेसर किरण शर्मा से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पे उपस्थित हों और हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरजीत सिंह राणा जी के जीवन काल को शब्दों की माला में हमारे समक्ष प्रस्तुत करें, उनसे रूबरू करवाएं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रोफेसर किरण शर्मा। डॉक्टर सुरजीत सिंह राणा जी, उनकी धर्मपत्नी मीना राणा जी, उनके बड़े भाई प्रकाश चंद जी और उनके कज़न ब्रदर संजय राणा जी,
उनके साथ आए हुए सभी सगे संबंधी और अतिथिगण, आज इस समारोह पर मैं अपना सौभाग्य मानूंगी कि मुझे सर के जीवन के कुछ अंश और उनका प्रोफाइल आपके सामने साझा करने का जो है वो मौका मिल रहा है। सर का जन्म, डॉक्टर सुरजीत सिंह राणा जी का जन्म सितंबर 1966 में एक साधारण परिवार में हुआ। सर की प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हुई, जहां सर 6th क्लास से लेकर +1 तक रहे, वहां से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। हायर एजुकेशन में BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और मास्टर्स इन इंग्लिश सर ने HPU यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। रिसर्च डिग्रीज में MPhil जो है वो पटियाला यूनिवर्सिटी से और PhD इन इंग्लिश सर ने देहरादून से प्राप्त की। जब सर मास्टर्स कंप्लीट करे ही थे अभी कि साथ ही सर ने शिक्षण में अपना पहला कदम रखा। 4 अगस्त 1989 को अपनी पहली ज्वाइनिंग सर ने DAV गर्ल्स कॉलेज सुजानपुर में दी और उसके बाद 1994 में अपने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन सर ने SD कॉलेज सुजानपुर की स्थापना के साथ रखा। SD कॉलेज सुजानपुर में सर ने बहुत ही जीवन का एक अहम वक्त गुजारा है और सर की शायद बहुत सारी यादें वहाँ पे, बहुत सारा काम सर ने किया जो कि सर के जीवन को अपने आप में जो है एक उभारता है। बहुत उस टाइम में आप समझिए कि आज से इतने वर्ष पहले, 30-35 वर्ष पहले की बात है, गर्ल्स एजुकेशन इतना ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, लड़कियों को दूर दराज पढ़ने नहीं भेजा जाता था। उस समय में सर ने गर्ल्स कॉलेज में और SD कॉलेज में गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया, दूर दराज से लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, साथ ही उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी वादा किया कि गर्ल्स पढ़ें और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल हम रखेंगे। इसके साथ ही SD कॉलेज में सर ने एज प्रिंसिपल और डायरेक्टर अपनी सेवाएं दी। वहाँ पे रहते हुए सर ने जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स रहते थे, मेरिटोरियस गर्ल्स स्टूडेंट्स रहती थी या जो स्पोर्ट्स पर्सन्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ स्पोर्ट्स में कर जाते थे, उन लोगों को हर मंथ 5000 रुपये सर अपनी तरफ से स्टाइपेंड भी जो है वो प्रोवाइड करवाते थे। तो उस वक्त ये अमाउंट और ये छोटी सी जो एक हम स्कॉलरशिप कह लें या स्टाइपेंड कह लें या छोटी सी जो मदद है, वो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए खासकर गर्ल्स एजुकेशन में जो है वो बहुत मददगार साबित हुई। आज पटलांदर से लेकर जयसिंहपुर तक हर कोई सुरजीत राणा जी को उनके उस काम के लिए, गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट करने के लिए, अपनी उस समाज सेवा के लिए हर कोई सर को जानता है। उसके बाद सन 2001 में SD कॉलेज सुजानपुर को गवर्नमेंट के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया। 2004 में सर जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज सीमा एट रोहड़ू वहाँ पे ट्रांसफ़र होकर चले गए। 2004 से 8 तक वहाँ पर उन्होंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश अपनी सेवाएं दी। उसके बाद अगर सर की जीवनी में देखें तो सन 2012 में सर एज एन एसोसिएट प्रोफेसर प्रमोट हुए, जब सर थुरुल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे थे। सन 2016 में सर की ट्रांसफ़र जो है वो जयसिंहपुर कॉलेज में KTC GTC जयसिंहपुर महाविद्यालय में हुई और तब से लेकर अभी तक करीब 8 वर्षों से लेकर यहाँ पर सर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सेवाएं देना एक शायद छोटा शब्द है, बहुत ही शानदार तरीके से सर ने जिस तरह से कॉलेज में अपने आसपास के क्षेत्र में और खासकर बच्चों में जो अपनी छाप छोड़ी है वो सच में काबिले तारीफ है सर। मतलब एक इंसान किस तरह से अपनी छाप अपने काम से छोड़ सकता है वो आपसे सीखा जाना चाहिए। शिक्षण में तो आप बेहतर हैं ही सर, इसके अलावा हमेशा आप समाज सेवा में भी आगे रहते हैं। आप एक बहुत अच्छे एंकर भी रहे हैं। जब भी हम स्टेज पर आते हैं तो सर हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं कि किस तरह से स्टेज पे जाना है, किस तरह से अपने उस दौर की सारी बातें बताते रहते हैं कि किस तरह से जो है वो एक अच्छा वक्ता बना जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है हम सर को हमेशा अपने दिलों में याद रखेंगे कि किस तरह से सर जो है हमें हमेशा मोटिवेट किया करते थे। इसके अलावा सर
बहुत ही लिबरल और सपोर्टिव नेचर के रहे हैं। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, जिसमें स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, स्वर्गीय श्री ठाकुर जगदेव चंद जी के नाम शामिल हैं, जिनके साथ सर के बहुत अच्छे संबंध रहे। और ये इसीलिए क्योंकि सर कभी भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, बहुत ही लिबरल रहते हैं, बहुत ही सपोर्टिव रहते हैं और बड़े खुले दिल से सबके साथ जो है वो मिलते हैं। आज इस मौके पर जब मैं यहाँ सर का प्रोफाइल पढ़ रही हूँ, तब हमारे बीच कुछ सर के पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें हमारे ही कॉलेज में प्रोफेसर रविंद्र जग्गी सर AP कॉमर्स, प्रोफेसर अंकित केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, देन डॉक्टर मितुल कायस्था AP कॉमर्स इन सुजानपुर कॉलेज। इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं आज सर के साथ जब मिलते हैं तो एक अपने आप में जो है वो सम्मानित होने का विषय रहता है कि हमारे स्टूडेंट्स आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। जब भी सर के साथ इस तरह से बातचीत चलती है तो सर हमेशा बताते हैं कि उस दौर में जब मैं पढ़ाया करता था, लगभग 80% ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो वेल प्लेस्ड हैं, जो कि अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे टीचिंग में, आर्मी में, अलग अलग जगह बहुत अच्छी सेवाएं दे रही हैं। एक शिक्षक के लिए शायद इससे ज़्यादा सम्माननीय और गर्व की बात कोई नहीं हो सकती कि उसके अपने स्टूडेंट आज उसके साथ खड़े हैं, एज अ कलीग खड़े हैं। तो सर ये आपके जो आपका किरदार है उसकी एक बहुत छोटी सी जो है वो एक झलक में बता रही हूँ। आपका पूरा अगर आपके बारे में हर चीज़ बतानी हो तो शायद पूरा दिन कम पड़ जाए, लेकिन हम सब स्नेह के बंधन में बंधे हैं। तो आज हमारे लिए खुशी का भी विषय है, सम्मान का विषय है, और थोड़ा सा दिल में ये भी है कि इसके बाद शायद सर जिस तरह से रोज आते थे उस तरह से हम हमें सर का साथ ना मिले, लेकिन आज भले ही सर आप सेवानिवृत्त। सर 2 लाइन्स के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी कि यूं तो गुजरे हजारों वाक़या मगर, यूं तो गुजरे हजारों वाक़या मगर, एक शख्स पूरे शहर को वीरान कर गया। थैंक यू। ये एक गौरव, अलग ही गौरव का एहसास होता होगा, और जिस तरह की उनकी शख्सियत है, हम धन्य हैं कि हमें इस महाविद्यालय में उनसे मिलने का मौका मिला और उनके साथ काम करने का मौका मिला और सीखने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ाना चाहती हूँ और मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरजीत सिंह राणा जी और उनकी धर्मपत्नी के साथ मंच पर आएं और उन्हें फेलिसिटेट करें। सर मैं आग्रह करती हूँ कृपया करके आप मंच पर आएं। साथ ही प्रोफेसर किरण शर्मा शॉल और टोपी से हमारे मुख्य अतिथि जी और उनकी जीवन संगिनी का आदर सत्कार। तालियां बजती रहनी चाहिए। मेरा सबसे अनुरोध है कि तालियों की गड़गड़ाहट से हमारा पूरा परिसर गूंज उठे। ये खुशी का दिन है जो 35 वर्ष बाद सबके जीवन में आया है। मैं किरण बस तारे फेस ते ना लाइट पे आ रही है बस ठीक है सर। सामने यस मैं सामने यस मैं सो मैं किरण मैम से अनुरोध करूंगी कि मैम को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया जाए। यस मैम सामने यस। एक जीवन संगिनी का बहुत बड़ा महत्व होता है किसी के भी जीवन में, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया और आज वे सर के साथ हमारे बीच मौजूद हैं। मैं प्राचार्य महोदय जी, सभी शिक्षक वर्ग, मुख्य अतिथि का धन्यवाद करूंगी। वे अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर
अर्पित कायस्था, मैं सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, जो कि हमारे सुरजीत सर के छात्र भी रह चुके हैं, उनसे अनुरोध करूंगी कि सर मंच पर आएं और पूरे स्टाफ की तरफ से 4 शब्द कहें। अर्पित कायस्था सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय प्रोफेसर उपेंद्र शर्मा सर, आज के इस समारोह के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुरजीत सिंह राणा सर व मेरे गुरुजी, उनके धर्मपत्नी श्रीमती मीना राणा मैम, इनके बड़े भाई प्रकाश चंद्र राणा जी, इनके बड़े भाभी जी शांति देवी जी, इनके दूसरे भाई राजेंद्र सिंह राणा सर, इनके वाइफ इनके भाभी जी सर के अनीता देवी जी, संजय राणा सर भाई जी एंड सुभाष भाई जी, इनके बेटे करण, वरुण व भतीजा अक्षय। इसके अलावा इन सर के साथ आए हुए सभी मेहमानों का मैं इस महाविद्यालय में पहुंचने पर स्वागत करता हूं। इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे स्टाफ मेंबर जो यहाँ पे बैठे हुए हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग से, सारे के सारे काम मैं यहाँ पे सभी को नमस्कार करता हूँ। और यहाँ पे इस महाविद्यालय में मैं अर्पित कायस्था, स्टाफ सेक्रेटरी, कंवर दुर्गाचंद राजकीय महाविद्यालय जसीमपुर में आने पर सभी का स्वागत करता हूँ। रिटायरमेंट, जैसा कि हम सभी को पता है, हम यहाँ पे रिटायरमेंट और सेवा तो मैं इसको ख़त्म कर पाऊँगा। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा सा समय जरूर नहीं। हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो ऐसे हैं कि जो यहाँ स्टेज पे आना था, बोलना कुछ नहीं था, सिर्फ उनके लिए जो सर हैं हमारे पिता के समान है। सर की जो गाइडेंस है, सर की जो फोर्स है, काम करने की जो फोर्स है, वो हम सबको एक माला के अंदर पिरो के रखती है। जैसे कोई भी मोतियों की माला देखी जाए, जब तक उसमें हुक नहीं लगाएंगे वो माला बिखरी होती है। तो सर का एक कार्य जो था एक हुक की तरह था, वो सभी को एक हुक में पिरो के रखते थे, सबको एक इसमें रखते थे। इसके अलावा स्टाफ मेंबर्स हैं जिनकी जो सर को पिता ना समझ के मामा जी कहते थे, वो उनके खास रिक्वेस्ट आई थी कि मेरी तरफ से पिताजी नहीं कहना, मामा जी कहना है। तो सरजनी मैम की तरफ से मामा जी को भी शुभकामनाएं। मैं शुरुआत करूँगी, अगर डॉक्टर सुरजीत सिंह राणा यहाँ होंगे तो मुझे आधी टेंशन खत्म होगी मेरी। होगी भी क्यों नहीं, इतने बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं हमारे कॉलेज के, रविंद्र जग्गी जी जो कि सबके स्टूडेंट्स भी रहे हैं। इसके अलावा विकास कलोत्रा जी, सर, नॉन टीचिंग से मिल्खी राम सर, संजय सर, और अभी नए नए जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, संगम जी, सुमिक्सल सर, रंजीत सर, तृप्ता मैम। इसके अलावा जो भी यहाँ पे छूट गए हैं, राजेंद्र सर, खुशी सर, मैं सभी की तरफ से सर आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और हम सब सर ये चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि ये 30 सितंबर थोड़ा सा लेट आए, जो पॉसिबल नहीं था। हम ये चाह रहे थे ये थोड़ा सा और लेट हो जाए, हमें कुछ समय आपके साथ इस महाविद्यालय में जरूर मिले, पर जो हो ही नहीं सकता। उसके बारे में हमारे जो ये स्टूडेंट्स भी खुद वॉलंटियर भी आके जो है इसकी डेकोरेशन की थी कि हम कल आएंगे और ऑन द स्पॉट हम जो है उसकी करेंगे। तो इसके अलावा कोई भी स्टाफ मेंबर छूट गया होगा तो मेंबर्स की तरफ से। अब मैं 2 मिनट अपनी बात जरूर करूँगा। 2018 में मैं इस महाविद्यालय में आया था। उस समय जब टीचिंग से निकला था मैं 2006 में सुजानपुर महाविद्यालय से मैंने बीएससी की थी। उस समय सर से हम बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, हमारा सिर्फ एक 2 ब्लॉक्स हैं। साइंस ब्लॉक पहले अलग से होता था ऊपर, और जो आर्ट्स ब्लॉक है वो नीचे होता था। तो स्टार्टिंग में जब हम गए फर्स्ट ईयर में, तो कुछ दिन जो क्लासेस ऊपर लगने शुरू हुई थी, सर जो है वो ऊपर आते थे क्लासेस लेने। फिर सर से मुलाकात हुई, पर इतना सर के बारे में मैं नहीं जान पाया था जितना इस महाविद्यालय में आने पर सर के साथ वाली चेयर में बैठ के जितना सीख पाया सबसे। जब मेरे फ्रेंड से बात होती है, जो मेरे कोलीग्स रहे हैं, जब उनसे बात होती है कि
सर के साथ मैं इस महाविद्यालय में सहायक कार्य के पद पे हूँ, तो वो बोलते हैं कितनी खुशी की बात है। ये मैं मानता हूँ कि मेरे लिए सौभाग्य है, मुझे सर के साथ काम करने का मौका मिला। जो भी स्टाफ मेंबर्स यहाँ 2018 से हैं या उसके पहले के हैं, और जो मेरा बिहेवियर था उसका इनका, और आज आप नोट करते हैं तो आप खुद जानते हैं कि मैं कितना चेंज आया। दिस चेंज इज ओनली ड्यू टू डॉक्टर सुरजीत सिंह राणा। पढ़ना और करना दो बातें होती हैं। सर हमेशा सर बच्चों से बात करने के लिए बच्चे की तरह बात करते थे। स्टाफ के साथ जब बड़ा होगा तो उस हिसाब से सहमत से बात करेंगे, बच्चा होगा तो सोच कर बात करेंगे। प्राचार्य महोदय जी से पूछने ना स्टूडेंट्स पे ना किसी पे, सर ने हमेशा मेरे को समझाया कि कभी आपने गुस्सा नहीं करना, सिर्फ 1% जो मैच्योरिटी, जो लेवल मैच्योरिटी का आपके पास है सर, जो आप मैनेज करते हैं इवेंट्स को, जो एज मेंबर्स की तरफ से अगर कोई गलती हो गई हो, कभी ऊंची नीचे बात हो गई हो, कभी गुस्से से मैंने या मेरे स्टाफ मेंबर में से किसी ने बोल दिया हो, या कोई भी सर ऐसी बात जो हो हमारी आपको बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं क्षमा मांगता हूँ सर कि अगर कोई हमसे गलती हो गई हो, कोई भी हो, तो हम छोटा समझ के, स्टूडेंट्स बच्चा समझ के या कलीग समझ के हमें माफ कर दें सर। सेवानिवृत्ति, अब 2 शब्द सेवानिवृत्ति में भी बोलूंगा मैं। आपका सर शानदार कैरियर रहा, जो भी रहा, जहाँ से जैसे किरण मैम ने आपका पूरा का पूरा जो है वो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, खूब शानदार जैसा भी आपने किया, आपने बहुत मेहनत से, जितने भी सर आपने जितना भी कार्य किया, किसी भी महाविद्यालय में कार्य किया, तो वहाँ से आपके जो व्यूज़ आए हैं कि आप बड़ी मेहनत से काम करते थे, पूरी लगन के साथ काम करते थे। और यहाँ तो हमने खुद देखा, हम साक्षी रहे इस बात का, गम भी है, सुख इस बात का, या सुख के पल इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक रूटीन बंदी होती थी, जो एक रूल्स और रेगुलेशन जिसके अंदर हम बाउंड होते थे, उनसे हम फ्री हो रहे हैं। अब फ्री हो रहे हैं, घर जाके बिल्कुल जो मन में चाहे, जब चाहे, जैसा कर सकते हैं। जब बाउंडिंग, जब आप एटमोसफियर, जब आप जॉब में हैं, जब आते हैं, तो कुछ ना कुछ बाउंडिंग जो हमारी रहती थी। पर अब आपकी खुशी का पल ये है, गम ये कि जो आपकी रूटीन थी और वो इंस्टेंटली जो वो चेंज हो रही है। आपने तो सर 2 महीने से कोशिश शुरू कर दी थी, यहाँ स्टाफ से जो है वो मिलना जुलना थोड़ा कम कर दिया था, एक अलग सा कमरा अपना बना दिया था, ताकि उस टीम में इतना ना, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद इतना ना हो सकती है कि आप बिल्कुल खूबसूरती के साथ निभाते हुए इन कर्तव्यों को भी आप पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक नए चरण के लिए जो खुशियों, स्वास्थ्य और रोमांच से भरा हूँ, यही कामना करता हूँ सर मैं। अब आपका समय जो आया है वो मेहनत, जो आपने मेहनत की उसको फल के आनंद लेने का समय आया हुआ है, और जो आपकी सादगी और सरलता है, मुझे आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास कि आप इसको बनाए रखेंगे। और अंत में मैं 2 पंक्तियां सर आपके लिए कहना चाहूँगा। अगर तलाश करूँ तो आपके साथ तो मंजर फरिश्तों सा, आपके साथ तो मंजर फरिश्तों सा, आज शाम के बाद यहाँ आपकी तरह कौन समझाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अर्पित सर। भावुक समय है हम सबके लिए ही, और कहते हैं कि आप क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, किस तरह से रहते हैं, ये शायद कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप दूसरों के प्रति किस तरह से बिहेव करते हैं, आप किस तरह से उन्हें ट्रीट करते हैं, ये ज़िंदगी भर एक इंसान हमेशा याद रखता है। और सर आपने